Hello children, welcome to your science class again. Today we are going to complete this chapter 2 components of food. As in the previous part, we have studied about different components of food that are carbohydrates, fats, proteins, roughage, water, vitamins and minerals, their sources and their importance. Now, in this chapter, we are going to know about the balanced diet. What is a balanced diet and why we should take it? Is the amount of balanced diet or the amount of nutrients are equal for everyone or it differs person to person? We are going to know that. And what is the correct way of cooking? Should we cook for a long time or should we wash too much the vegetables, the pulses, rice? What can cause if we wash it too much? And some important deficiency disease that are caused due to lack of vitamins and minerals. All this we are going to know in this chapter. So let's begin here. Balanced diet. In the previous class, we have already studied about this. Balanced, as the name suggests here, balance, it means not too much, not too less. तो ऐसी डाइट जो हम बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, इट मीन्स जिस डाइट को हम खा रहे हैं उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें एक राइट अमाउंट में जब मिले, दैट मीन्स दैट इज़ द बैलेंस डाइट. नॉर्मली हम डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हैं. अब वो फूड हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम में हम अलग अलग फूड खाते हैं. लेकिन क्या जो हम डाइट ले रहे हैं या जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पा रहे हैं? अगर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं या हम रिपीटेडली एक ही तरह के न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट डाइट इज़ नॉट बैलेंस्ड. So it is very important to know that whatever food item we are eating, it should have all the nutrients. That means it should have carbohydrates, proteins, fats also, vitamins, minerals. It should have right roughage, and it should have water also at the same time. So a balanced diet means then all the nutrients in a food item, that is in right amount, that we call as balanced diet. But do you know that the nutrients that we are taking in through our food item, it is equal for everybody? No. ऐसा नहीं है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो सभी के लिए एक जैसे हैं. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत हो और कुछ लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की इतनी ज़रूरत ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट होने तक की स्टेज ग्रोइंग स्टेज होती है. तो इस स्टेज में प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. सो द चिल्ड्रन शुड हैव प्रोटीन्स इन गुड अमाउंट. But at the same time, if we say about or if we talk about the persons, those who are laborers or those who are working in the field or doing hard work, physical hard work, they need much more calories or they need much more energy. At the same time, if we talk about the sports person, they also need much energy. So for the good amount of energy, they should take carbohydrate. So we can say that the amount of nutrients is also dependent on the age and also the work we do. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds like moong and bengal gram, fermented foods like South Indian foods such as idlis, a combination of flours like misi roti, theplas,
made from cereals and pulses, banana, spinach, jaggery, all these are very nutritious. और इन सब के अलावा वेजिटेबल्स जो हमें अवेलेबल होती हैं, फूड्स जो हमें अवेलेबल हैं, दे प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कॉस्टली चीज़ों से ही न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. नो, वी कैन टेक न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स विदाउट एनी एक्सपेंसिव food material. So eating the right kind of food is not enough, but it should also be cooked properly so that the nutrients should not lost. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड भी होने चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. मीन्स सही तरीका क्या है. जो हम फूड आइटम खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उसे ओवर कुक करें. तो ओवर कुकिंग में क्या होगा, ओवर कुकिंग में बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इवेपरेट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिससे फिर हमें उस फूड आइटम से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता. सो ये ज़रूरी है कि हम राइट वे में अपने फूड आइटम को कंज्यूम करें और उसे कुक करें. जब हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमें बिना कट किए ही पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि कटिंग में क्या होता है, कटिंग में उनके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो पानी में वॉश हो जाते हैं. और बहुत पतले पतले स्लाइसेस भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इससे भी विटामिन्स एंड मिनरल्स पानी के साथ में वॉश हो जाते हैं. टू मच वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, अगर हम राइस और पल्सेस को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, बार बार उसको वॉश करते हैं, तो उससे भी उनके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं पानी के साथ में. हमें कुछ वेजिटेबल्स या विटामिन्स एंड कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, लेकिन वेजिटेबल्स को भी रॉ फॉर्म में हमें लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलड. जैसे हम खा सकते हैं, जैसे कैरेट है, या हम लेटस लीव्स हैं, या फिर हम टमाटोज़, कैबेज, इस तरह के वेजिटेबल्स को हम रॉ फॉर्म में अगर लें तो हमें गुड अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा. ओवर कुकिंग से, एंड अगर हम बहुत सारा पानी डाल करके उसे काफ़ी देर तक अपने फूड आइटम को पकाते हैं तो उससे भी न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में आइटम में होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें फूड को सही तरीके से कुक करें. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away. It means अगर हम बहुत ज़्यादा पानी मिला करके उबालते हैं, कुकिंग करते हैं, या फिर अगर हम जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एक्सेस पानी को सुखाने के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे उबालते रहते हैं और कभी कभी हम पानी को फेंक भी देते हैं. तो ये हमें नहीं करना चाहिए. विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी जब हम फूड को पकाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसी तरह से कुछ मिनरल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम फूड को पकाते हैं. इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें उसे कवर करके फूड को बनाना चाहिए, और दूसरी बात हमें ओवरकुक कभी भी नहीं करना चाहिए. ऐसे ही कभी कभी हम सोच सकते हैं जैसे कि क्यों ना हम ऐसे जंक फूड खाएं या कुछ ऐसे टेस्टी फूड खाएं जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ैट से हमें क्या मिलता है, फ़ैट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. तो हो सकता है कि हमारे माइंड में ये सवाल आए, ये क्वेश्चन आए कि हम क्यों ना ज़्यादा एनर्जी के लिए फ़ैट्स को ही कंज्यूम करें, क्योंकि फ़ैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो इसी तरह से अगर बच्चे सिर्फ फ़ैट्स पर डिपेंड रहेंगे या कोई भी पर्सन सिर्फ फ़ैट्स पर डिपेंड रहेगा तो क्या होगा ये रिज़ल्ट कि वो फ़ैट हमारे बॉडी के अंदर जा कर के इकट्ठा होने लगेगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारी बॉडी ओवरवेट हो जाएगी.
इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट इकट्ठा होने की वजह से हमारी बॉडी ओबीस हो जाएगी। तो ओबीस क्या है होना? ओबिसिटी एक तरह की डिजीज़ है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाता है और हमारी बॉडी ओवरवेट हो जाती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा या हम सिर्फ फैट रिच फूड को ही कंज्यूम करते जाएं। और इससे फिर क्या होगा? इससे हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी बॉडी का स्टैमिना कम हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी फेस करनी पड़ जाती हैं इस तरह की ओबेसिटी में। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम फैट रिच सब्सटेंसेस या फैट रिच फूड आइटम्स को एक बैलेंस अमाउंट में ही कंज्यूम करें। दैट मीन्स जितनी हमें ज़रूरत है उसकी हमारी बॉडी को उतना ही हम उसको कंज्यूम करें। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। व्हाट इज़ दिस डेफिशिएंसी डिजीज़? डेफिशिएंसी मीन्स व्हाट? कमी या लैकिंग। तो ऐसी डिजीज़ेस जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, दैट मीन्स अगर हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन उस खाने में हम सिर्फ बहुत ज़्यादा किसी एक न्यूट्रिएंट पे डिपेंड हैं या हमारी बॉडी में बहुत समय तक कोई न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स हो जाएंगे या हमारी बॉडी डिसीज़ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जब होती है न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, तो दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। सो व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़? डेफिशिएंसी डिजीज़ मीन्स any diseases or a disorder which is caused due to the lack of nutrients over a long period is called deficiency disease. If a person does not get enough proteins in his or her food for the long period, for the long time, she or he likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन बहुत समय तक अपने फूड आइटम में प्रोटीन्स ना ले तो क्या होगा? हमारी फेस स्वेलिंग में आ जाएगी, हमारे हेयर वाइट होने लगेंगे, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, स्किन डिजीज़ हो जाएंगी एंड इवन डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रोटीन की कमी से जो ये सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं किसी बच्चे में, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, अगर उनमें प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट में ना जाए या उनमें लैक हो जाए प्रोटीन काफ़ी समय तक, तो ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। और इस तरह जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो इस तरह की डिज़ीज़ को हम कहते हैं क्वाशरकोर। तो ये क्वाशरकोर के सिम्टम्स हैं। लेकिन किसी पर्सन की डाइट में अगर बहुत समय तक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी से हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो नहीं होंगे प्रॉपरली। हमारी बॉडी की ग्रोथ रुकेगी, हमारे स्टेमिना ख़त्म होगा एंड प्रोटीन्स की कमी से, क्योंकि हमारी बॉडी डेवलपमेंट करती है, तो हमारी वो डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। तो इट मीन्स अगर किसी के अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स किसी बच्चे के अंदर बहुत समय तक लैकिंग हो या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर उसको मैरस्मस डिजीज़ हो जाती है। मैरस्मस क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्रोथ विल स्टॉप कंप्लीटली एंड सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। बहुत वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, काम करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो विल नॉट बी एबल टू move also. So this disease is called as marasmus. So deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in the table 2.3. तो केवल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स की ज़्यादा होने से ओबेसिटी होती है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से मैरस्मस एंड प्रोटीन्स की कमी से क्वाशरकोर डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी अगर लैकिंग है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट होती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या हमारी बॉडी डिसीज़ हो जाती है, जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या है। लुक एट दिस टेबल हियर। विटामिन ए, जैसे कि विटामिन ए हमें
कैरेट में बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है, और इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या मिल्क, ये सब विटामिन ए के सोर्सेस हैं। क्या होगा अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा? तो लॉस ऑफ विजन, इट मीन्स हमारी जो आई साइट है वो पुअर हो जाएगी, हमारी नज़रें जो है वो कमज़ोर होती चली जाएंगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें दिखना कम हो जाएगा। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, जो लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इट मीन्स अगर बहुत टाइम तक ये इग्नोर होता रहेगा ये सिचुएशन, तो पूरी तरीके से कंप्लीटली हमारी जो देखने की क्षमता है या हमारी जो विजन है वो चली जाएगी। विटामिन बी, इट कॉजेस बेरी, जिसमें क्या होता है हमारे बॉडी पर रेड स्पॉट्स होने लगते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी हमारी बॉडी में रहेगी। विटामिन सी, इस डिजीज़ से क्या होता है, इससे स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स जो हमारे होते हैं वो उनमें खून आने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, बहुत टाइम तक हमारी चोट ठीक नहीं होती है। यानी ये हमारी विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो अगर विटामिन सी नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, और हमारा इम्यूनिटी अगर कम होगी तो हम जल्दी हील अप नहीं हो पाएंगे। विटामिन डी, रिकेट्स, अब विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में लैक करता है तो इट मीन्स हमें रिकेट्स होगा, और इसके सिम्टम्स बोन्स हमारी बेंड होने लगेंगी, इट बिकम्स सॉफ्ट, एंड बहुत ईजिली ये मुड़ जाती हैं, डी शेप हो जाती हैं, इनका शेप बिगड़ जाता है। तो ये इस तरह की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। कैल्शियम आपको मालूम है हमारी बोन्स और टूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे टूथ डिके जल्दी होगा, हमारी बोन्स वीक होंगी, एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में ही विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आयोडीन, नेक्स्ट मिनरल इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है गॉइटर क्या है? गॉइटर हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई शेप की होती है, वो उसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है, वो बड़ी हो जाती है, और उससे हमारी जो नेक है वो स्वलन हो जाती है, वो बाहर की तरफ मोटी होने लगती है। तो इस तरह से जो है सिचुएशन किस वजह से होती है? आयोडीन की कमी से होती है, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारी मेंटल ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं होती है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया मीन्स जब हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाए, तो दैट मीन्स वी आर एनेमिक। एंड इससे क्या होगा, हमारे जब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हमारा ब्लड नहीं बन पाएगा, तो हमारे अंदर वीकनेस होगी और हमारी बॉडी येलोइश होने लगेगी, पीलिया होने लगेगा। तो दैट सिचुएशन इज़ बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो वी शुड थिंक ओवर दिस कंडीशन। तो यहाँ पर आपको बस समझने की ये है कि जो भी हम खाना खाएं, एक तो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, एंड दूसरा जब हम खाना पकाते हैं, कुक करते हैं, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहें, इस बात का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। एंड इस तरह से अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी, हमारे अंदर एनर्जी भी बराबर बनी रहेगी, जो हमारे डिफरेंट वर्क के लिए, हमारे स्टेमिना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। So I hope children you understood this chapter very well. Now this chapter is completed. So that's all. Thank you for watching.